वेलकम टू आइदास कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको मीन्स आई वांट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर इन जनरल पार्लंस। The meaning of expense and suppose the meaning of expenditure taken as in a similar sense, but there is a difference. Means expenses due to expenses, and you may be known person about expenses just like wages, stationery, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, salary, these are the expenses. By paying means if a businessman paid wages, stationery, electric bill, stationery, whatsoever expenses, audit fee, what happened, businessman invested some capital to start the business. That is suppose 1 lakh here, 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया to start the business. That can be called as capital, means it is a equity. यह एक इक्विटी हुआ। कारपोरेट सेक्टर में मैं कैपिटल इक्विटी ऐसे शब्द प्रयोग कर सकता हूं, ठीक है। What happened here? By paying wages, stationery, electricity, whatsoever expenses, what happened here? The equity decreases. Equity means capital decreases, and we will get the benefit of wages, stationery for that particular year, for particular time. When you paid the wages means you appointed the layman to complete the work. You appointed a layman to complete the work, and after completion there is a need to pay wages. That's why your capital decreases, your equity decreases. Same thing when you purchase the stationery, when businessman purchase the stationery for business activity, etc. So what happen again, that businessman will get a benefit of that stationery for that particular. Same thing you can use for electricity, telephone expenses, audit fee, etc. ठीक है, these all are the revenue type of expenses, not expenditure. ठीक है, revenue type of expenses, and after paying that amount in the form of wages, stationery, salary, etc., our capital decreases. Our capital decreases, and benefit received for that business for a particular financial year, and you can't carry forward the benefit to next year. But under a expenditure, what happened means, just like suppose plant and machinery purchase, asset means building purchase, plot purchase, etc. What happened here? Your capital decreases, but at the same time it come in your business. So you can, means I can explain in another form. Suppose the capital of this businessman, suppose 10 lakh, ठीक है, 10 लाख, ये 10 लाख उसका कैपिटल है, ठीक है। इसने क्या किया, he purchased the plant and machinery and furniture for rupees 5 lakh, ठीक है, this is the cash, हाँ, यह कैश है उसके बिजनेस में। he purchased the plant and machinery or suppose furniture, total amount I have taken, that is 5 lakh। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 लाख रुपए बचे, मतलब रह जाएंगे। आई बात समझे, 5 लाख रुपए, ठीक है, ये कैश रहेंगे, सही बात है, यह कैश रहेंगे। बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपन, प्लांट एंड मशीनरी कम्स इन हिज बिजनेस। आई बात समझे, इसी वजह से इक्विटी यानी कैपिटल डिस्टर्ब नहीं हुआ। और आफ्टर परचेसिंग द प्लांट एंड मशीनरी, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, the benefit of that, you businessman or company will get more than years. That's why the purchase of plant, it means the purchase of any asset treated as an expenditure, it is not a expense। यह बात ध्यान में रखना है। मतलब इसका जो क्रक्स है वह क्या आएगा कि एक्सपेंस से क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल इक्विटी कम हो रहा है। आई बात समझे, ठीक है। और दूसरी बात, एक्सपेंडिचर से क्या हो रहा है, आपका कैपिटल यानी कैश
नेचुरल बात है कि भाई कम हो गया, लेकिन क्या हुआ, इक्विटी डिस्टर्ब नहीं हो गई, वो उतना ही दिखेगा आपको, सिर्फ फॉर्म मतलब अलग रहेगा, कैश के फॉर्म में रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। ये बात समझ में है, और बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत बार कंफ्यूज मतलब हो जाता है। आम आदमी का तो छोड़ दीजिए, एकेडमिक में स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूं, तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर वह इस्तेमाल करेंगे इन सेम सेंस, ठीक है, ख्याल में रखना। और रिपीट करता हूं एक बार कि ये रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू का मतलब ऐसा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे कि उसका बेनिफिट उसी ईयर के लिए मिलेगा पर्टिकुलर। जैसा अपन ने समझो फिनेंशियल ईयर यहाँ पे ऐसा लिया 2019 2020, आपने वेजेस पेड किया तो आपको बेनिफिट इसी ईयर के लिए, स्टेशनरी परचेस किया इसके लिए, ठीक है, सैलरी। अब दूसरा ले लेता हूं, आपने क्या किया, अभी स्टेशनरी परचेस किया, ठीक है, यह स्टेशनरी परचेस किया, यह स्टेशनरी कितने अमाउंट का, सपोज 5000 का स्टेशनरी परचेस किया, यू परचेस द स्टेशनरी फॉर 5000, बट आउट ऑफ दिस in this particular financial year a stationery of rupees 3000 it is used and remaining 2000 carry forward to 2020 2021। आई बात समझिए, यह हुआ तुम्हारा एक्सपेंडिचर बचा हुआ। क्योंकि क्या हुआ, देखो ये 2000 रुपए का जो स्टेशनरी है आप नेक्स्ट ईयर में इस्तेमाल करोगे, इस वजह से 2000 रुपए से आपका कैपिटल कम नहीं हो गया, सिर्फ फॉर्म बदल गया, कैश के जगह ये आ गया। आई बात समझे, ठीक है। इसी वजह से ख्याल में रखना कि जो कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूम हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड यू विल गेट अ बेनिफिट फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अगर ऐसा बोल दिया प्रीपेड, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, प्रीपेड सैलरी, it is not an expenses. When I say only salary, it is an expense. When I say prepaid salary, it come under the head expenditure. क्योंकि क्या हुआ, उसका बेनिफिट जो है उसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। इसी वजह से एनी एक्सपेंसेस, देखिए क्या हो रहा है, एनी एक्सपेंसेस इफ द बिजनेसमैन पेड इन एडवांस इट इज अ एक्सपेंडिचर, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड वेजेस है, प्रीपेड स्टेशनरी है, प्रीपेड ऑडिट फीस है, if any revenue expenses paid in advance, the amount paid in advance, and you will get a benefit in next year, so that is a expenditure। ये बात समझ में है, ठीक है। इसीलिए कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेंगे वह एक्सपेंडिचर रहेंगे, और जो आपने वेजेस स्टेशनरी जो पेड किया पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो उसको बोलूंगा मैं एक्सपेंसेस। तो ये ख्याल में रखना, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बाइफर्केशन करने के लिए, मालूम होना चाहिए कि भाई एक्सपेंस ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दिस इज एक्सपेंस, एंड ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दिस इज अ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगले लेक्चर में ऐसा ही कुछ और एक दो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत सारी कॉन्सेप्ट है तो छोटा छोटा है, तो एक एक अपन अपलोड करेंगे और आपको भी इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.